Welcome students. Today we are going to study the next activity of business activities. The first is industry and the second is commerce. Today's our topic is commerce. We have to define the meaning of commerce. The commerce is concerned with exchange, distribution of goods and services. थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर कहना चाहें तो जो एक्टिविटी गुड्स को बनाने का काम करती है वो इंडस्ट्री होती है, और जो एक्टिविटी जो है गुड्स को और सर्विसेज को बेचने का या उसको एक्सचेंज करने का काम करती है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स का जो रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, commerce is concerned with exchange and distribution of goods and services. कॉमर्स क्या है? एक्सचेंज है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। वो एक्टिविटी बिजनेस की जो हमारे एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, से कंसर्न है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स we can define the word commerce that the commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the final goods to the customers or users. कॉमर्स में वो एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक या यूजर तक पहुंचाने का काम करती है। वो एक्टिविटीज जो गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स या यूजर तक पहुंचाने का काम करती हैं, उन एक्टिविटीज को हम कॉमर्स की एक्टिविटीज कहते हैं। कॉमर्स की एक्टिविटीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज एक्सलरीज टू ट्रेड। एक्सलरीज टू ट्रेड का दूसरा नाम है एड्स टू ट्रेड। Sometime this question can be asked by the examiner, what is the second name of auxiliaries to trade? तो answer will be the second name of auxiliaries to trade, the aids to trade. Now we have to define the meaning trade. Trade refers to buying and selling. Trade refers to buying and selling of goods and services with profit motive. कि ट्रेड जो है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने या बेचने का एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जिसको हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। आई वांट टू से दैट द ट्रेड इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज done with the profit motive. There are two things which are involved in the trade. First is buying and second is selling. Or in other words, we can say this activity involves exchange of goods and services between buyers and sellers. ये जो एक्टिविटी है हमारी ट्रेड की, इसके लिए दो पर्सन्स का होना जरूरी है। फर्स्ट इज बायर एंड सेकंड इज सेलर। और सेकंड थिंग विच इज कंसिडरेबल फॉर ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द सेकंड थिंग्स विच वी कैन मेंशन इन द एक्टिविटी ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। In other words, we can define trade. The trade is concerned with buying and selling of goods and services that makes available them to ultimate consumer or users. The means trade जो है buying और selling of goods and services से related है, जो कि consumer और user तक पहुंचाने का काम करता है। Now I am going to describe the types of trade. There are two types of trade. First is internal trade
and second is external trade. The internal trade is known by another three names. First is home trade, second is national trade, and third is domestic trade. The second type of trade is external trade. First, the name of the external trade are also three names. First is outside trade, second is international trade, or third is foreign trade. The external trade is also known by another three names. The first is outside trade, second is international trade, and third is foreign trade. Internal trade. Internal trade is also called home trade or domestic trade. It is concerned with buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country or within a nation. Both buyer and the seller belong to the same country. इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो होता है उसको होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं. इसका रिलेशन बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होता है जो कि देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर या देश के अंदर ही अंदर होता है. जैसे ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो व्यापार हो रहा है इंडिया के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो स्टेट टू स्टेट है, चाहे वो सिटी टू सिटी है, विद इन द बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है. इसके अंदर क्या होता है, दोनों बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं. जो इंटरनल व्यापार है हमारा, जो इंटरनल ट्रेड है, उसको हम होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं. ये एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है या विद इन द नेशन होता है. इसके जो बायर और सेलर हैं सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया का लिया कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो इंडिया की हैं उसके अंदर होने वाला ट्रेड दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ये सिटी टू सिटी भी हो सकता है, स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गंगानगर टू हनुमानगढ़, गंगानगर टू अनूपगढ़, सिटीज टू सिटी, गंगानगर टू हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर टू हरियाणा, गंगानगर टू पंजाब, राजस्थान टू महाराष्ट्र, राजस्थान टू गुजरात. ये सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू स्टेट हो सकते हैं. इस तरह के व्यापार को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड. आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज आल्सो कॉल्ड होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड. इट इज कंसर्न्ड विद बाइंग एंड सेलिंग. ये दोनों कंसेप्ट तो ट्रेडिंग के लिए बोथ आर नेसेसरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द geographical boundaries of a country or within a nation. Both buyer and a seller belong to the same country. This is internal trade. Internal trade can be divided into two broad categories. जो हमारा internal trade है इसको हम दो broad categories के अंदर divide कर सकते हैं. First is wholesale trade. First is wholesale trade and second is retail trade. Wholesale trade क्या होता है, when goods are purchased and sold in bulk. bulk stock जो बहुत बड़ा स्टॉक होता है, when goods are purchased and sold in bulk, जब जो गुड्स हैं बड़े ज़्यादा स्टॉक में खरीदी या बेची जाती हैं, that type of trade is wholesale trade. When goods are purchased and sold in bulk means producer or manufacturer to wholesaler. Only two participants are in the wholesale market. First is producer or manufacturer और second is wholesaler.
and massive capital is required in wholesale trade. Retail trade, when goods are purchased and sold in smaller quantity, जब वस्तुओं को खरीदा या बेचा थोड़ी मात्रा में जाता है उस समय उस ट्रेड को हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। इसके अंदर 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट in this trade. First is producer, second is wholesaler, and third is retailer. Retailers act as a link between wholesaler and in the consumer. Retailers act as a link between wholesaler and the consumer.